إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق حل کرنی ہے۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل آیات میں اسماء منصوبہ کی نشاندہی کریں اور ان کی قسمیں بھی لکھیں۔ فخرج منہا خائفا، پس وہ نکلا وہاں سے ڈرتے ہوئے۔ تو یہ خائفاً حالت نصب میں ہے اور یہ حال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب ان سے ایک قتل ہو گیا تو پھر انہیں ڈر ہوا تو وہ ڈرتے ہوئے اپنے شہر سے نکل گئے مدین کی طرف۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، تم ضرور برضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا، امن کے ساتھ اپنے سروں کے بال مڑاتے ہوئے، ومقصرین یا کاٹتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات دراصل اس حوالے سے بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آئی کہ ہم مکہ میں داخل ہوئے ہیں عمرہ کے لیے اور وہاں احرام ہم نے کھولا ہے، جانور ذبح کیے ہیں، اور یہ خواب آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں دراصل یہی بات بتائی کہ آپ کے خواب کو ہم سچا کر دیں گے اور آپ ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ بال بھی کٹوائیں گے اور بال مڑائیں گے بھی، امن کے ساتھ داخل ہوں گے، کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے اسی سال عمرے کا ارادہ فرما لیا۔ جب وہاں پہنچے تو پھر آخر کار صلح حدیبیہ کے نتیجے میں آپ کو واپس آنا پڑا۔ تو بعض مسلمان، بعض صحابہ آپ سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوں گے امن کے ساتھ، لیکن اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سال؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر انشاءاللہ ضرور داخل ہوں گے۔ تو یہ آیت دراصل اس سے متعلق ہے۔ تو یہاں پر آمنین، محلقین اور مقصرین، یہ تینوں حال بن رہے ہیں، یہ حالت نصب میں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نون گروپ کی حالت نصب یا نون کے ساتھ ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں آمنین، محلقین اور مقصرین تینوں جگہ حالت نصب ہے یا نون کے ساتھ۔ لَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو ہرگز نہیں پہنچ سکتا پہاڑوں کی چوٹیوں تک لمبا ہو کر۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے تکبر کے بارے میں بات کی ہے کہ تکبر مت کرو۔ تو تکبر انسان کرتا ہی کس بنیاد پر ہے؟ نہ زمین کو پھاڑ کر نیچے بھاگ سکتا ہے، نہ پہاڑوں پر چڑھ کر بھاگ سکتا ہے، تو تکبر کس بنیاد پر کرتا ہے؟ اللہ نے دراصل دلیل کے طور پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تو ہرگز پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکے گا، یعنی پہاڑوں کی چوٹی تک لمبا ہو کر نہیں چڑھ سکے گا۔ یہاں طولاً تمییز ہے جو کہ حالت نصب میں ہے۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور وہ کہنے لگے کہ تم گرمی میں مت نکلو۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہہ دیجئے جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے گرمی کے لحاظ سے۔ جنگ تبوک کے لیے اللہ کے نبی نے تمام ایمان والوں کو تیاری کی دعوت دی، تو بعض لوگ اس جنگ میں شریک نہ ہوئے بلکہ پیچھے بیٹھے رہے۔ تو اس موقع پر وہ خود بھی شریک نہ ہوئے، بعض منافقین دوسروں کو بھی روکنے لگے کہ بڑی گرمی ہے، کیسے جاؤ گے؟ تو اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ کہتے ہیں کہ مت نکلو گرمی میں،
इनको बता दो कि जहन्नम की आग, यानी अगर नहीं निकलोगे फिर जहन्नम में जाना होगा, और जहन्नम की आग तो इस गर्मी से ज़्यादा गर्मी वाली है, अशद्दु ज़्यादा सख्त है, हर्रन गर्मी के लिहाज से। तो ये हर्रन जो है ये भी तमयीज़ है, कई पहलुओं में से किसी एक पहलू को। जहन्नम की आग बहुत सख्त है जलाने के लिहाज से, तोड़ फोड़ करने के लिहाज से, गर्मी के लिहाज से। तो यहाँ मुख्तलिफ पहलुओं में से एक पहलू को जो है नुमाया किया गया है हर्रन, तो ये हालत नस्ब में है और ये तमयीज़ है। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, बेशक हमने आपके लिए फ़ैसला किया है, वाज़ेह फ़ैसला। ये भी सूरह फतह की आयत, तो गोया ये भी उसी के साथ ही इसका ताल्लुक़ है कि हमने ये फ़ैसला कर लिया आपके लिए कि आप ज़रूर मक्का में दाखिल होंगे। यहाँ फतहन मुबीनन, फतहन गुजरे हुए फेल का मस्दर है जो ताकीद के लिए आया है कि हमने पक्का फैसला कर लिया। मुबीनन का माना है वाज़ेह, और ये फतहन की सिफत है। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, वो पुकारते हैं अपने रब को डरते हुए और लालच या उम्मीद रखते हुए। तो यहाँ खौफन ये मफूल लहू है, यानी उनका पुकारने का जो अमल है वो किस लिए है? डरने के लिए और लालच करने के लिए, उम्मीद रखने के लिए। व रफ़अना फ़ौक़कुम तूरा, और हमने तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को उठाया। ये दरअसल बनी इसराइल से मुखातिब होकर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि जब उनसे पक्का अहद लिया तो तूर पहाड़ को उन पर छत की तरह ला खड़ा किया और उनसे कहा कि मानते हो कि नहीं मानते। जब उन्होंने पहाड़ को ऊपर देखा अपने ऊपर तो फ़ौरन वो मान गए और तस्लीम कर लिया कि हम मानते हैं। तो ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ बयान फरमाई है कि हमने तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को उठाया। तो यहाँ फ़ौक़कुम हालत नस्ब में है और ये मफ़ूल फ़ी है, क्योंकि फ़ौक़ ऊपर को कहते हैं, ये ज़र्फ़ मकां है और ये मफ़ूल फ़ी है। और अत्तूरा ये भी हालत नस्ब में है, ये रफ़ाना का मफ़ूल है, ये मफ़ूल बेही है। तो फ़ौक़ा मफ़ूल फ़ी और अत्तूरा मफ़ूल बेही है, ये दोनों हालत नस्ब में है और ये मंसूबात में शामिल हैं। ला यज़्कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, मुनाफिकों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ये लोग अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते मगर बहुत थोड़ा। तो यहाँ एक लफ्ज़ अल्लाह हालत नस्ब में है, ये ला यज़्कुरून का मफ़ूल बेही है, और एक क़लीलन ये इल्ला का मुस्तस्ना है। तो मुस्तस्ना जो होता है ये भी अमूमन हालत नस्ब में होता है। या माशरल जिन्नि वल इंस, ए जिन्नों और इंसानों के गिरोह। तो यहाँ माशर का लफ्ज़ मुनादा भी है क्योंकि इसे पुकारा जा रहा है या कहकर, और फिर जिन की तरफ ये मुदाफ भी है, तो मुनादा मुदाफ हालत नस्ब में होता है, तो इस वजह से ये हालत नस्ब में है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात में कोई तब्दीली मुमकिन नहीं, यानी अल्लाह जो बातें करता है, जो वादे फरमाता है वो अटल होते हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं होती। तो यहाँ ला के बाद ऐसा इसम है कि जिसके आखिर पर ज़बर है, तो ये लाए नफ़ी जिन्स का इसम है। तो लाए नफ़ी जिन्स का जो इसम होता है ये भी हालत नस्ब में होता है। मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिया, नहीं थे इब्राहीम यहूदी और ना नसरानी। वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, लेकिन वो यकसू और फरमा बरदार थे। यकसू से मुराद वो एक तरफ के होकर रहते थे, यानी ये नहीं कि कुछ शिर्क कुछ तौहीद, नहीं, वो एक तरफ के होकर रहते थे, यानी बिल्कुल शिर्क से पाक थे। तो यहाँ काना इब्राहीम, इब्राहीम काना का इसम है और यहूदियन काना की ख़बर है। तो इसी तरह काना हनीफन,
यहाँ काना के अंदर ही हुआ ज़मीर है जो इब्राहीम की तरफ राजे है और वो काना का इसम है, और हनीफन जो है और मुस्लिमन ये दोनों काना की खबरें हैं, तो दोनों ही हालत नस्ब में हैं। गोया काना और जो उसकी अखवात हैं यानी अफ़ाल नाक़सा उसकी ख़बर हालत नस्ब में होती है। तो यहाँ दोनों जगह मा काना इब्राहीम यहूदियन, ये यहूदियन जो है ये, और नसरानियन का भी क्योंकि अतफ़ यहूदियन पर हो रहा है वो भी इसीलिए हालत नस्ब में है, और हनीफन जो है ये भी काना की ख़बर है। तो गोया काना की ख़बर क्योंकि हालत नस्ब में होती है इस वजह से यहाँ हालत नस्ब है। मा हाज़ा बशरा, नहीं है ये इंसान। ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़या में जब अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने बहुत सी औरतों को बुलाया और उन्हें कहा कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाती हो, आओ ख़ुद देख लो, तुम मुझे मलामत करती हो, आकर ख़ुद इस नौजवान को देखो। तो जब वो आई तो उसने उनके हाथ में छुरी और फल दे दिए और वो फल काटते हुए और उधर से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके सामने आने का हुक्म दिया। चुनाचे जब यूसुफ़ उनके सामने आए तो वो फल काटते काटते अपना हाथ काट बैठी और यूसुफ़ को देखते ही रह गई अलैहिस्सलाम। तो इस बात को अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ बयान फरमाया। साथ ही वो कहने लगी मा हाज़ा बशरा, ये तो कोई इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इंतहाई खूबसूरत इंसान थे, यानी इस वजह से उन्होंने कहा कि ये इंसान नहीं बल्कि ये तो फरिश्ता है। तो माँ का इसम है हाज़ा और माँ की ख़बर है बशरन, यानी गोया असल में था हाज़ा बशरुन, इधर से शुरू में आया माँ, तो हाज़ा माँ का इसम हो गया और बशरन जो है ये माँ की ख़बर है। ये वही माँ है जो लैसा के मुशाबे होता है। गोया अगर माँ को हटाकर यहाँ लैसा को लगा दिया जाए तब भी यही होगा, लैसा हाज़ा बशरन, क्योंकि लैसा भी अपनी ख़बर को हालत नस्ब में ले जाता है, इसीलिए इस माँ को मुशाबे बेलैसा कहा जाता है। तो माँ की ख़बर जो माँ मुशाबे बेलैसा हो उसकी ख़बर हालत नस्ब में होती है। यही वजह है कि यहाँ हालत नस्ब में है। यहाँ एक शेर है, वलदत का उम्मु का बाकियन वन्नासु हौलका ज़ाहिकून फ़अमल सालिहन लितज़हब ज़ाहिकन वन्नासु हौलका बाकून। तुझे तेरी माँ ने जना इस हाल में कि तू रो रहा था और लोग तेरे इर्द गिर्द खुश हो रहे थे। फ़अमल सालिहन लितज़हब ज़ाहिकन, तो अब दुनिया में आया है तो नेक अमल कर ताकि तू हंसता मुस्कराता जाए और लोग तेरे इर्द गिर्द रो रहे हों। यहाँ वालदत का उम्मु का, तेरी माँ ने तुझे जना, बाकियन ये नहीं कि माँ रो रही थी, नहीं, बाकियन अगर माँ के ये हालत होती तो फिर बाकियतन होता, क्योंकि मुअन्नस है और ये मुदक्कर है। तो यहाँ से मालूम हुआ कि ये पैदा होने वाले बच्चे के लिए है, तो इसलिए बाकियन है। तो ये तू रो रहा था, यानी जब तू इस दुनिया में आया तेरी माँ ने तुझे जना तो तू रो रहा था। तो बाकियन हाल है और हाल हालत नस्ब में होता है। हौला ये मफूल फ़ी है, हौला का माना इर्द गिर्द, तो ये ज़र्फ़ मकान है, इस वजह से हालत नस्ब में है। तो ज़ाहिकन दूसरे शेर में ज़ाहिकन ये भी हाल है, वन्नासु हौलका बाकून, और लोग तेरे इर्द गिर्द रो रहे थे। तो हौला ये इसम ज़र्फ़ है, मफूल फ़ी है, इस वजह से ये हालत नस्ब में है। सवाल नंबर 2, मदरजा झैल उर्दू जुमलों का अरबी में तर्जमा करें। नंबर 1, वो हंसती हुई गई और रोती हुई वापस आई। ज़ाहबत ज़ाहिकतन व रजअत बाकियतन,
यहाँ बाकियतन और दाहिकतन हाल हैं। नंबर 2, खामोश होकर बैठ जाओ, इजलिस साकितन, साकितन हाल है। मेरा भाई तुम्हारे भाई से उम्र के लिहाज से बड़ा है। अखी अकबरु मिन अखी का सिन्नन, यहाँ सिन्नन तमयीज़ है, यानी बड़ा है किस लिहाज से? उम्र के लिहाज से। कई पहलुओं में से एक पहलू को नुमाया करना, तमयीज़, सिन्नन। नंबर 4, मैं तुमसे उम्र के लिहाज से बड़ा हूँ लेकिन इल्म के लिहाज से छोटा हूँ। अना अकबरु मिन का सिन्नन असगरु मिन का इल्मन, यहाँ सिन्नन और इल्मन दोनों तमयीज़ हैं। नंबर 5, मैंने उसे ठीक ठाक मारा, यानी ताकीद का मफहूम है इसमें। ज़रबतुहु ज़रबन, अगर शदीदन भी साथ लगाया जाए तो लगाया जा सकता है, लेकिन ज़रबन जो है ये मफूल मुतलक है, गुजरे हुए फेल का मसदर ताकीद के लिए आया है। ज़रबतुहु ज़रबन। नंबर 6, हमने तुम्हारा 2 दिन इंतज़ार किया। इंतज़रना का यौमैनी, जो यौमैनी है ये हालत नस्ब में है, ये मफूल फ़ी है क्योंकि ज़र्फ़ ज़मा है। नंबर 7, दाईं तरफ देखो फिर बाएं देखो। उन्जुर यमीनन सुम्मनजुर यसारन, तो यहाँ यमीनन और यसारन ये मफूल फ़ी हैं क्योंकि ये ज़र्फ़ मकां है। नंबर 8, लड़का सोया हुआ था। कानल वलदु नाइमन, ये काना का इसम नाइमन हालत नस्ब में है। नंबर 9, मैं इस स्कूल में तालिब इल्म था। कुन्तु तालिबन फ़ी हाज़िहिल मदरसती, तो यहाँ कुन्तु में आना ज़मीर काना की इसम है और तालिबन जो है ये काना की ख़बर है। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि काना की ख़बर हालत नस्ब में होती है, इसलिए ये हालत नस्ब में है। दोबारा सुन लीजिए। कुन्तु तालिबन फ़ी हाज़िहिल मदरसती, हम मुतमइन थे। कुन्ना मुतमइन्नीना, कुन्ना में नहनो काना का इसम है और जो ज़मीर मुस्ततर, छुपी हुई ज़मीर मुस्ततर उसे कहते हैं। तो मुतमइन्नीना जो है ये काना की ख़बर है। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि काना की ख़बर हालत नस्ब में होती है। मुतमइन्नीना जो है ये हालत नस्ब में है, इसकी हालत रफ़ा मुतमइन्नूना होती है। तो ये मुतमइन्नीना है तो या नून के साथ वाव नून की हालत नस्ब होती है, इसलिए ये हालत नस्ब है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।